Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Good? Today, inshallah, in English, we'll do chapter number 5, that is Little Red Riding Hood. This is the name of a girl, right? Open page number 30 in your book, Nelson English. One day, Little Red Riding Hood's mother called her in from the garden. What happened? One day, Little Red Riding Hood's mother, she called her in from the garden. Garden में से call करती है. Little Red, and now she says, Little Red Riding Hood, will you take this basket of food and to your grandmother? Now she asked her, what? Will you take this basket to your grandmother? Now my grandmother that can you take this? She is not very well and I want her to have something good to eat. Grandmother, she is not well. She is ill. बूढ़ी हो गई, बीमार है. Now what does she want? I want her to have something good to eat. मैं चाहती हूँ that she should eat something good. Yes, I will pick some of the red flowers and take them too. Now she said, I will also pick some of the flowers, beautiful flowers. That also I'll give it to grandmother. मैं अपने साथ में क्या है कुछ flowers भी ले जाऊंगी. Said Little Red Riding Hood. Now Little Red Riding Hood picked the flowers in the bright, sunny garden. She took the basket of food and set off into the wood. What she did? She went into the garden and she picked out the flowers. एक करके she picked flower. And the garden, it was bright, sunny garden. And she then puts everything in the basket and she sets off to the wood. Now, there's a word called wood. Wood मतलब होता है लकड़ी. But we also use word wood for jungle. Jungle के लिए भी word जो है wood इस्तेमाल किया जाता है. Do you know this? अच्छी बात है आपको पता चली. माशाअल्लाह. Okay. As she walked along the narrow path. Now she walked along the narrow path. Along कहते हैं किसी के साथ साथ. Narrow, बहुत तंग रास्ता था. Path, रास्ता. She walked along the narrow path. पतले रास्ते में से निकल के जा रही है. Can you see the picture? Yes, it is here. It becomes very dark. फिर रात हो गया. अंधेरा हो गया. There were big trees on either side. इधर भी ट्री थे और इधर भी ट्री थे. The trees grew very close together and covered the sun. रात नहीं हुई थी, लेकिन क्या हुआ? Trees came together and covered the sun. ऊपर से सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही थी. अंधेरा हो गया पूरी तरीके से. A few flowers grew on the edge of the path, but they were not big and bright like the flowers in the garden. There were some small flowers. वो नीचे छोटे-छोटे से flowers थे, but they were not big enough as they were there in the garden. Garden में जो थे उनकी तरह बड़े-बड़े नहीं थे. यहाँ पर छोटे-छोटे से flowers वहाँ नजर आ रहे थे. They were small and pale. They were very small and they were pale. Pale means colorless. उनका color अच्छा नहीं था. Like in garden, they were red, yellow, all the colors flowers were there. And you can see some flowers. red color के basket में दिख रहा है ना? Yes, there are flowers. The path grew narrower. आगे जाती जा रही थी और path क्या हो रहा था? पतला होता चला जाता. Narrow, पतला होता चला जाता path. The wood grew colder and colder. ठंड होती चली जा रही थी. गर्मी हो रही है अभी तो. और वहाँ ठंड होती चली जा रही थी. Little Red Riding Hood turned a corner, she saw a dark shape standing in the middle of the path. As soon as she turned, जैसे ही देखा उसने dark shape जो था वो she was
standing in the path. बिल्कुल अंधेरे में से कोई पाथ में कोई खड़ा हुआ था. That's the story. अब क्या हुआ होगा आगे, right? Now this is what you have to do in your imagination. यहाँ तक तो स्टोरी बनाकर के उन्होंने आपको बता दी. What could happen? There could be someone like possibly there is her grandmother. She was standing there. वो डर रही थी कि शायद कोई और होगा. Instead of it, she was her grandmother, and she was very happy. Maybe her grandfather was standing. Maybe her father was standing there. Maybe somebody thief. Some thief was standing there. कोई चोर खड़ा हुआ था. Could be anything, right? This is called imagination. यहाँ से स्टोरी इस तरीके से हम बना सकते हैं अपने माइंड के अंदर से. Okay. Now this way we have come to the end of the chapter. Now we'll go forward to exercise. Open page number 32 in your book, Comprehension A. Write a sentence to answer each question. What did Little Red Riding Hood's mother ask her to do? क्या कहा था उन्होंने? Will you please take these basket to your grandmother? I want her to eat something good today. This is what he said. Why did Little Riding Hood's mother want her to do that? Because she wanted her to eat something good. Yes. As well as a basket of food, what did Little Riding Hood take with her? As well as a basket of food. Food basket, as well as what was there? There were also flowers that she picked from the garden. What happened to the path as a Little Red Riding Hood walked further into the wood? जब वो आगे बढ़ गई वुड में, जंगल में, तो क्या हुआ? The path grows narrower and narrower. The path was also getting dark. The trees were coming together. Now, part B, write words to describe how Little Riding Hood was feeling. Discuss why with a friend. अब आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है. क्या? कि write words of describing how Little Riding Hood was feeling. आपको बताना पड़ेगा वो कैसे फील कर रही थी. Question number 1 is, how do you think Little Red Riding Hood was feeling when she sets off? Why? How do you think? कैसा फील कर रही थी? She was very happy. She was excited. She was happy. She was excited. Why? Because she was going to her grandmother. Why do you think Little Red Riding Hood was feeling when she was alone in the wood? Why? अब जब वो जंगल में अकेली रह गई तो उसको कैसा फील लगा था? She was scared. She was feeling fearful. Right? Why? Because she was alone and it was dark. How do you think Little Red Riding Hood was feeling when she saw a dark shape standing in the middle of the path? जब उसने बिल्कुल बीच में एक डार्क शेप कुछ दिखता है, किसी चीज की शैडो दिख जाती है उसको, तो कैसा फील किया उसने? She was afraid. She was afraid somebody might come and kill her. मार के चला जाए या उसके सब कुछ छीन करके ले जाए. Right? Why? Because she was alone and she was a small girl. She was little. Okay. Do you think you would have to felt? Do you think you would have to felt the same as Little Riding Hood while walking through the wood? Discuss with a friend. क्या आपको भी ऐसा ही लगेगा? डरेंगे आप भी? Yes. क्योंकि आप लोग भी सब छोटे हैं ना, और छोटे क्या बड़े भी होंगे तो एकदम से कोई चीज आएगी तो all will get scared. हम एकदम से डर जाएंगे. क्यों होता है? Because this is a human mentality. We are human beings. हम सब डर जाते हैं, right? Okay, now coming to vocabulary, open page number 33 in your book. Opposites. Some words have opposites in the story. The flowers were big in the garden. The flowers were small in the wood.
देखिए कितनी बड़ी बात है। वहां फ्लावर्स कैसे थे? थे वो बिग गार्डन में, while in the jungle, in the wood, while the flowers were small. तो these are opposite word, इनको opposite word कहते हैं, उल्टा। हमने किए हैं लास्ट ईयर यूकेजी में भी आपने करके आए थे और लास्ट ईयर फर्स्ट में भी किए हैं। यस, सो इंशाल्लाह नहीं यूकेजी में करके आए ना इंशाल्लाह, अब फर्स्ट है आपका। ओके, कॉपी ईच वर्ड बिलो एंड देन राइट अनदर वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट। अब आपको क्या करना है? कॉपी ईच वर्ड बिलो, सारे वर्ड नीचे लिख लीजिए और उनके ऑपोजिट लिखना है। एम्प्टी, फुल। अप, ऊपर, क्या होता है नीचे? नीचे, डाउन। यस, ऑपोजिट क्या होगा? नो। डे, नाइट। गुड, बैड। हैप्पी, सैड। यंग, ओल्ड। लॉन्ग, शॉर्ट। Yes, mashallah. Okay, make the opposite of each word by adding either un or dis. आपको पता है opposite में हम un भी ऐड करते हैं तो कभी कभी opposite बन जाता है, और dis भी ऐड करते हैं तो opposite बन जाता है। कैसे? I'll show you some example. Page number 33, part B of opposite. Tie, untie. Appear, disappear. Appear मतलब दिखाई देना, disappear गायब हो जाना। Tie, tie means गांठ बांधने को कहते हैं, टाई कर देना। अनटाई, खोल देना। हैप्पी, अनहैप्पी, खुश, ना खुश। ट्रू, सच, अनट्रू। यस, वैसे फॉल्स कहते हैं ना, ट्रू फॉल्स, लेकिन यहां पे अनट्रू भी सही होता है। ट्रू का मतलब होता है सही। टाइडी, अनटाइडी। टाइडी मतलब साफ में, कहते हैं ना नीट एंड टाइडी। अग्री, डिसअग्री। Okay, letters added to the beginning of the word are called prefix. तो ये add अगर हमने un कर दिया add, तो un को कहेंगे क्या? un और dis, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? prefix. Yes, ये आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप याद रखें। Now coming to next part is punctuation. Punctuation, contraction to have. ये हमने किया दिया। I have got, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे to have, TO2HAV, have। तो इन दोनों को मिलाकर के लिखने के लिए कैसे? to apostrophe VE, have। तो लेकिन पढ़ेंगे हम to have, to have। जैसे आप यहां देखिए ए पार्ट, इट सेज, सब लोग पेज नंबर 33 पर आइए, देखिए। I have write the letters that have been left out। इसमें क्या छूट गया? I have में HA। you have क्या छूट गया? HA। he has, तो क्या छूट गया? ES, तो HA छूट गया यहाँ पर। she has, तो क्या छूटा? HA छूट गया। they have, क्या छूटा? HA छूटा। we have, तो क्या छूटा? HA छूटा। it has, तो हमें याद हो गया हैव और हैज होगा तो HA को हम छोड़ देंगे। ठीक है, हमने ये बात इसमें पता चली है। और इस ऊपर के कॉमे को क्या बोलते हैं हम? एपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी। और इस तरीके से लिखने में क्या कहते हैं हम इसको? कॉन्ट्रैक्शन। हम इसको जोड़ करके लिखने में क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। राइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज वर्ड। अब इनके वर्ड्स क्या आप कहना है? वी हैव, HA हटा देंगे, वी हैव हो जाएगा। He has, HA हट जाएगा, सब में से HA हट जाएगा और एपोस्ट्रोफी लग जाएगा। सिंपल। ओके, अब turn the page, page number 34 is about spellings, right? मैं जल्दी कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर इतनी जल्दी कर रहे हैं, कैसे होगा? You can see the video once again। आपको छूट जाता है, पॉज कर दीजिए, इतना करिए, फिर इंशाल्लाह आगे करेंगे। Adding ING, ED and ER। अब आपको ING ऐड करना है, ED ऐड करना है, ER ऐड करना है। ओके, when we need to add endings to very short words, there are some rule। जब हम लास्ट में कुछ ऐड करते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं हमारे पास में। ओके, what are the rule? If the letter before the last letter is a vowel, लास्ट के लेटर में
पहले वॉवेल आता है, यू नीड टू डबल द लास्ट नंबर। जैसे BIG बिग है, देखिए लास्ट तो G है, लेकिन लास्ट से एक पहले वाला क्या है, वॉवेल है, I है, तो क्या करेंगे, G को डबल कर देंगे। बिग, बिग को बिगर बनाना है, तो क्या होगा, BIGGER। बात समझ में आई? ओके, इफ द लेटर बिफोर द लास्ट लेटर इज नॉट अ वॉवेल, अगर उससे पहले वाला वर्ड जो है वो वॉवेल नहीं है, यू डोंट नीड टू डबल, तब हमें डबल करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, डार्क, DARK, आखिर के दो लेटर क्या है, R है और K है, तो दोनों में से कोई भी वॉवेल नहीं है। अगर लास्ट के दोनों लेटर वॉवेल नहीं है तो क्या करेंगे हम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ER लगा दी, डार्कर। कोल्ड, LD, क्या होगा, ER, कोल्डर। अब आपको ये एक्सरसाइज करना है, ग्रैब, देखिए एक बी और ए जो है वॉवेल है ना, यस, तो क्या होगा, GRABBED, ग्रैब्ड। HUMMED, SHOPPED, SKIPPPED, DROPPED, सब में आएगा, क्योंकि एक पहले जो है वॉवेल आ रहा है सब में। अब इसमें क्या है, ING ऐड करना है, RUN। रूल क्या था, U वॉवेल है, ठीक है, लास्ट का सेकंड लास्ट नंबर जो वॉवेल आ रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, NN, रनिंग, रनर। डस्टिंग, अब ये देखिए ST आ गया। अब हम T को डबल नहीं करेंगे, S और T है तो DUSTING, डस्टिंग कर दिया, DUSTER, डस्टर कर दिया। THIN, थिन, IN, ठीक है, THINING, थिनिंग, और THI, ये डबल N आएगा, सॉरी, THINNING, थिनिंग, और THINNER, थिनर। ओके, रूल अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अगर सेकंड लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट लेटर जो है आपका क्या होगा, वॉवेल होगा, तो लास्ट वाला जो लेटर है उसको डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। राइट दिस वर्ड एडिंग ING, ER और ED। ओके, बेकिंग, BAKING, ठीक है, BAKER, BAKED, USING, USER, USED, RACING, RACER, RACED। अब क्या है, if a short word ends with E, you need to take off the E before adding ING। अब आपको अगर लास्ट में वॉवेल आ रहा है E, तो आपको क्या करना है, E को हटा देना है, बस सिंपल, और ER, ED और ING लगा देंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। Okay, now coming to next exercise, that is grammar adjectives, making opposites। अब इसके opposite बनाना है। Adjectives are describing words, big and bright flowers, small and pale flowers। उधर क्या था, big and bright, इधर क्या होगा, small and pale, तो ये क्या है, opposite इसके। Read the adjective in box 1, find the opposite from box 2। Good, light, cold, wide, big, small, warm, dark, narrow, bad। इसमें एक बॉक्स 1 में क्या है, आपके क्या है, वर्ड है, इनके ऑपोजिट बॉक्स B में है, इनसे इनको मैच करना है। गुड का क्या होगा, बैड, लाइट का, लाइट, स्मॉल, डार्क, यस, कोल्ड, कोल्ड ठंड होती है, मतलब स्मॉल, वार्म, गरम, वाइड, वाइड मतलब होता है बिग, और वाइड का मतलब नैरो, यस, पतला हो गया, बिग, बिग, स्मॉल। देखिए बिग, वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है, चौड़ा, और नैरो का मतलब होता है पतला। रोड जो होता है वो बिग नहीं होता, बिग रोड, रोड या तो चौड़ा होगा या पतला होगा, लेकिन किसी एनिमल को हम कहेंगे बिग, ठीक है, एलिफेंट है तो बिग हो गया। Okay, writing setting. When you write a story, you have to think about where your story happens। आप जब स्टोरी लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्टोरी कहाँ पर है, तो बताया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेटिंग। जैसे ये स्टोरी है, कहाँ पर थी, गार्डन में और वुड में थी, तो दिस इज सेटिंग। सबसे पहले गार्डन से स्टोरी स्टार्ट हुई है।
The first part of the story, Little Red Riding Hood, happens in the garden. ये कहाँ पर हुई है? Garden में. Second part of the story happens in the wood. Second part story का कहाँ हुआ? जंगल में. Find and copy two words from the story that tells you what it was like in. आपको यहाँ स्टोरी में से कुछ वर्ड्स निकालना है और बताना है कि ये चीजें कैसी थी. द गार्डन, गार्डन कैसा था? गार्डन वॉज क्या था? बिग एंड ब्राइट फ्लावर्स, राइट? कैसा था? ब्राइट एंड शाइनी. वुड कैसा था? डार्क एंड कोल्ड. ठीक है, तो दो मैंने आपको बताया. मेक अ लिस्ट ऑफ अदर वर्ड्स दैट यू कुड यूज टू से व्हाट वाज लाइक इन. गार्डन में और क्या क्या चीजें थी? कैसा था? कैसा हो सकता है गार्डन? ग्रीन, यस, ग्रीन हो सकता है. या फिर ये हो सकता है पानी भरा हो, इट वॉज वेट. ठीक है. या फिर उसके अंदर सब डस्ट हो, अनटाइडी, गंदा सा हो. ठीक है, ये सारे वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वुड के लिए कुछ एग्जांपल बताइए कि ये हो सकता है इट वॉज ब्राउन. और क्या हो सकता है? इट वॉज क्लीन, इट वॉज अनटाइडी, गंदा था बहुत ज्यादा, इट वॉज डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक था. ठीक है, ये सारे वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन राइट देम इन योर आंसर्स. नाउ यूज द वर्ड इन एक्टिविटी 1. जो आपने एक्टिविटी 1 में आपने वर्ड करे थे. राइट अ सेंटेंस अबाउट गार्डन एंड अ सेंटेंस अबाउट वुड. अब आपको एक एक सेंटेंस लिखना है. इन द गार्डन इट वॉज रेनिंग. राइट, इट वॉज रेनिंग हैवीली. कह सकते हैं बारिश पड़ी थी. कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं. इन द वुड इट वॉज डेंजरस, इट वॉज स्कैरी, राइट, इट वॉज डार्क. ऊपर वो शाइनी था लेकिन यहाँ डार्क था. राइट, वी कैन मेक दीज सेंटेंसेस. दिस इज कॉल्ड सेटिंग एंड मेकिंग सेंटेंसेस. इस तरीके से आपको सेंटेंस मेकिंग भी आ रही है. आई नो दिस इज गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट. क्लास फर्स्ट में आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह डेली रीडिंग करेंगे और जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, अगर इसको लिखने के साथ साथ आप याद करते चलेंगे, सो योर इंग्लिश विल बिकम वेरी गुड. जितना मैंने आपको कराया है उसको आप डेली रिवाइज करिए, तब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है. एंड व्हेन द स्कूल विल रीओपन, तो आप देखेंगे यू विल बी स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश इंशाल्लाह. You all want to speak good English? Yes, inshallah. So your homework is कि आप सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करिए. We are sending PDF also, so आप उसको देख करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर. That's the end of this session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.